right, G, let's begin. Am I audible? Can you guys hear me? Can I have a confirmation? Can you guys hear me? Yes, sir. All right. So today we are going to start the final accounts of Sole Trader. Thank you. Today we are going to start the final accounts of Sole Trader. So let's begin. So I'm starting the screen sharing. I'm trying to find one particular question. Just give me a couple of minutes. All right. So you must be having my notes. So if you want to look at the format, you can check out page 55, format of the detailed financial statements. In fact, the formats are starting from page number 53. So first of all, I've given the basic formats and then the detailed formats are there from page 55 onwards. So in the beginning, we don't need the detailed formats. We just need the basic formats which are given on page 53 and 54. So we will learn how to make the income statement and the SOFP. Okay. So let's learn that through a question. The question number one from your notes. So let me just rub all of this. All right, beta. I'll give you 5 minutes to read this. You must be having this question in your notes. This is on page number 57. Those of you who somehow still do not have the notes, please take the screenshot. Five, four, three, two, one. All right, bachos. So it's 12:10 by my watch. I will start doing the question at 12:15. So read this question very carefully.
4 more minutes. Three more minutes. Two minutes. Last minute. Last few seconds. All right, let's begin. So, अच्छा जी, what is the situation till now? हमने जो भी कुछ पढ़ा है, if we recap that, so सबसे पहले accounting process work कैसे करते हैं? We prepare the documents, जिसमें sales invoice for credit sales, purchase invoice for credit purchases, debits and credit notes for sales returns, receipts for cash and bank payments, and so on. Documents के बाद हमारी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बनती हैं, जिनको हमने कंट्रोल अकाउंट्स वगैरह में देखा था. सेल्स डे बुक, परचेज डे बुक, ओरिजिनल और प्राइम एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल और प्राइम एंट्री. परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, परचेज रिटर्न्स डे बुक, सेल्स रिटर्न्स डे बुक, पेटी कैश बुक एंड जनरल जर्नल. एंड देन थर्ड स्टेप क्या होता है इसके बाद? वी प्रिपेयर द टी अकाउंट्स, व्हिच इज प्राइमरीली नोन एज लेजर्स बेसिकली. ठीक है, उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं. यहाँ तक हम सारे स्टेप्स देख चुके हैं, राइट?
ट्रायल बैलेंस के बाद हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में बेसिकली प्राइमरीली और भी चीजें आती हैं, हम पढ़ेंगे आगे जाके, लेकिन फिलहाल के लिए बस ये समझ लीजिए कि देयर इज एन इनकम स्टेटमेंट एंड देयर इज अ बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इनकम स्टेटमेंट में हम प्रॉफिट्स एंड लॉसेस फाइंड आउट करते हैं। सो इनकम स्टेटमेंट में वी विल टेक द इनकम्स and the expenses, and SOFP shows the situation at the end of the year, the financial position at the end of the year. So assets, liabilities and capital, ये तीन चीजें यहाँ चली जाती हैं. So assets, liability and capitals are shown in the SOFP, which is the situation at the end of the year, और income statement जिसमें income and expenses होते हैं, ये आप income statement में show करेंगे. ठीक है, इसका छोटा सा screenshot ले लो बेटा. This is how the whole accounting process works. चाहे sole trader हो, चाहे partnership हो, चाहे company हो, चाहे कोई भी type की organization हो. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है? I hope आपने screenshot ले लिया उसका. Okay, let's move on. अब हम final accounts पर आ रहे हैं, यानी कि we have to prepare the income statement as and SOFP. तो ट्रायल बैलेंस के बाद है ये स्टेप, जैसा कि आप देख सकते हैं, राइट? सो ट्रायल बैलेंस आपके सामने बना हुआ है, ठीक है? वी हैव ऑलरेडी लर्न हाउ टू प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस, ठीक है? सो यू आर गिवन अ लिस्ट ऑफ बैलेंसेस, जितने भी टी अकाउंट्स आपके पास हैं उसके अंदर आपके पास लिस्ट ऑफ बैलेंसेस दी हुई हैं. तो कभी कभी आपको इस तरह भी कंफ्यूज कर सकता है. फॉर एग्जांपल जिस तरह यहाँ पर इसने लिखा हुआ है परचेजेस एंड सेल्स. नाउ यू नीड टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ व्हिच आर परचेजेस एंड व्हिच आर सेल्स. तो ये हम डबल एंट्री की बेसिक नॉलेज से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, द नेचर ऑफ अकाउंट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. हाँ बेटा, परचेजेस का कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट या क्रेडिट? एनीवन ओवर द माइक क्विकली. डेबिट होगा, बिकॉज परचेजेस एक्सपेंस है, शाबाश. और सेल्स इनकम है, तो इनकम का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, राइट? तो इस तरह से आपको खुद से आइडेंटिफाई करनी होती है कभी कभी चीजें. इन्वेंट्री जो कि ट्रायल बैलेंस में गिवन होती है ना, ये बात याद रखिएगा, ये हमेशा ओपनिंग इन्वेंट्री होती है. इसके ऊपर डिटेल में मैं फिर बाद में बात करूंगा कि ये ओपनिंग इन्वेंट्री क्यों है और ये जो नीचे दी हुई है ये क्लोजिंग इन्वेंट्री क्यों है. ठीक है, इस पे हम बात करेंगे बाद में, लेकिन अभी के लिए बस इतना याद रख लें कि ट्रायल बैलेंस में जो इन्वेंट्री दी हुई है दैट इज द ओपनिंग इन्वेंट्री, और नीचे फुट नोट में नोट्स टू दी अकाउंट्स में एडिशनल इंफॉर्मेशन में एडिशनल नोट्स में जो है आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई होगी. हमेशा ऐसे ही होता है, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर 1% रेयर केसेस. ठीक है, वो फिर हम बाद में बात करेंगे. 99% केसेस में ऐसे ही होगा, ठीक है. अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखें आगे तो अकाउंट्स रिसीवेबल और पेबल भी ऐसे ही दिया हुआ है. So account receivable has a debit balance or credit balance? Anyone over the mic? Accounts receivable debit balance होता है, credit balance? Debit balance, शाबाश. Asset है, so receivable का debit balance होगा और payable का credit balance होगा. तो इस तरह से हो सकता है आपको चीजें खुद से आइडेंटिफाई करनी पड़े. अच्छा, डिस्काउंट्स भी ऐसे ही दिए हुए हैं इसने. डिस्काउंट्स के अंदर एक डेबिट बैलेंस है और एक क्रेडिट बैलेंस है. सो डिस्काउंट अलाउड की नेचर क्या होती है, एक्सपेंस है या इनकम? डिस्काउंट, शाबाश. सो डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस है, तो उसकी डेबिट बैलेंस होगा, और डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम है, तो इसका क्रेडिट बैलेंस होगा. तो कभी कभी इस तरह ट्रायल बैलेंस में मिक्स एंड मैच करके चीजें दी हुई होंगी, मिक्सअप करके आपको उसको खुद ही से आइडेंटिफाई करना होगा. ऑलराइट. अच्छा, अब बिफोर वी एक्चुअली मूव ऑन, हम क्या करेंगे, देखो कुछ चीजें हमें नीचे दी हुई हैं एडिशनल नोट्स पे, तो हम क्रॉस रेफरेंसिंग कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल हमें वेजेस एंड सैलरीज के बारे में बताया हुआ है, अक्रूड है. तो ऊपर हम देखते हैं ट्रायल बैलेंस में वेजेस एंड सैलरीज जहां दिया हुआ है, इसके आगे हम लिख लेंगे बी, ताकि जब हम वेजेस एंड सैलरीज को देखें ना तो ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट नंबर बी या 2 वट एवर इज द केस, वो हम उसको ऑटोमेटिकली देखें और हमसे कोई चीज मिस ना हो जाए. ऑलराइट. इसी तरह ऑफिस एक्सपेंसेस आप देखें तो उसकी भी एडजस्टमेंट है, तो ऑफिस एक्सपेंसेस के सामने भी हमने लिख लिया बी. सो दिस वे वी आर नॉट गोइंग टू मिस आउट ऑन एनी एडजस्टमेंट्स. अभी एडजस्टमेंट्स कैसे करनी है, ऑफ कोर्स साइंस स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, ओ लेवल्स वाले को तो पता होगा, बट फिर भी जरा डिटेल में हम इसको डिस्कस अभी करेंगे. मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एडजस्टमेंट करनी है. फिर हमें दिया हुआ है रेंट की एडजस्टमेंट, रेंट प्रीपेड है,
तो ऊपर हम देखेंगे रेंट कहाँ दिया हुआ है, रेंट एंड इंश्योरेंस एक साथ दिया हुआ है, इसके सामने हमने लिख लिया सी। फिर है इंक्रीज इन द अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, सो डाउटफुल डेट्स के सामने हमने लिख लिया डी। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, अब डेप्रिसिएशन ऊपर कहीं नहीं दिया हुआ, अगर आप देखें तो हमें सिर्फ फिक्सचर एंड फिटिंग्स और वैन का बैलेंस दिया हुआ है। सो डेप्रिसिएशन को हम यहीं पे मार्क कर लेते हैं कि ई बिल्कुल सेपरेट है और ये ए भी क्लोजिंग इन्वेंट्री बिल्कुल सेपरेट है, ताकि हम ये चीजें मिस ना करें। ऑलराइट, तो सबसे पहले हमने बनानी है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में हम सबसे पहले अपनी प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू लेते हैं, हमारा जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। सो व्हाट इज आवर मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू? दैट इज नेचुरली सेल्स। तो सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे सेल्स 127,245 की, ये हमारी मेन सोर्स ऑफ इनकम है, ये हमने असल पैसा यहाँ से कमाया है, राइट। सो ये हमारी हो गई 127,245। फिर हम इसमें से माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न्स और रिटर्न इनवर्ड्स, क्योंकि ये हमारे पास गुड्स वापस आ चुकी हैं। हमने कस्टमर को सेल किया था 127,245 का, बट 3,486 की गुड्स रिटर्न हो गई हैं, कस्टमर ने हमें वापस कर दिए हैं। मे बी दे वर फॉल्टी और दे वर नॉट अप टू द मार्क or they were not as per the order given by the customer. So for whatever reason the customer has returned those goods back to us. तो sales हम लिखेंगे 127,245, उसमें से 3486 माइनस कर देंगे क्योंकि वो सेल्स नहीं रही, वो सामान हमारे पास वापस आ गया। So this is how we begin. See. अच्छा, 3 कॉलम्स मैक्सिमम बहुत होते हैं हमारे लिए बनाने के लिए, वैसे तो अगर छोटा सवाल होगा तो 2 कॉलम में भी काम चल जाएगा। सो सेल्स हमने लिखी 127,245 की, उसमें से हमने रिटर्न इनवर्ड्स और सेल्स रिटर्न्स माइनस कर दिया, तो ये आ गई हमारे पास नेट सेल्स। कि नेट टू नेट बेसिस पे जो एक्चुअल सेल्स हैं जिस पे हमें प्रॉफिट मिला होगा वो है 123,759। ऑल्टरनेटिवली ये आप सेल्स और सेल्स रिटर्न्स डायरेक्टली अगले कॉलम में भी दिखा सकते थे, ठीक है, या आप यहाँ भी दिखा सकते हैं नेक्स्ट कॉलम में, इट्स अप टू यू, ठीक है जी बेटा। यहां तक इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज आस्क मी राइट नाउ बिफोर आई मूव ऑन। यू हैव 10 seconds टू आस्क मी एनीथिंग बेटा, और माइक पे पूछिएगा, चैट अभी मेरे सामने नहीं है, ओके। 5 more seconds, especially any science student. 5 4 3 2 1 ओके, लेट्स मूव ऑन। अब हम लोग सबसे पहले जो अब जाहिर सी बात है ये हमने सेल्स कर ली, अब हमारा इसके ऊपर कुछ खर्चा हुआ होगा, तो जितने भी एक्सपेंसेस है ना उसकी पहली कैटेगरी होती है एक्सपेंसेस की कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में याद रख लें क्या जाता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में बेटे वो सारे एक्सपेंसेस जाते हैं जो गुड्स आपने सेल करी है ना उससे डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो गुड्स आपने सेल करी हैं वो आपने बाय करी होंगी, तो परचेज कॉस्ट यहाँ पर आएगी, और ना सिर्फ खरीदने की कॉस्ट बल्कि उस गुड्स को खरीदने से लेकर रेडी करने तक फॉर द सेल, वो सब इसमें आएगा। सो ऑल द एक्सपेंसेस नेसेसरी टू ब्रिंग द गुड्स इन सेलेबल कंडीशन, ये सारे एक्सपेंसेस यहाँ पर आएंगे। सो यहाँ पर मैं छोटा सा इधर मेंशन कर देता हूँ कि कॉस्ट ऑफ सेल्स में कौन से एक्सपेंसेस आते हैं। सो कॉस्ट ऑफ सेल्स includes all expenses necessary to bring the goods in saleable condition। अगर आपको याद हो ये चीज हमने इन्वेंट्री वैल्यूएशन में भी पढ़ी है बेटा। सो खरीदने से लेकर उसको तैयार करने तक का सारा खर्चा। ऑलराइट, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जरूर इसका। तो वही चीजें जो हमने इन्वेंट्री वैल्यूएशन में पढ़ी है, परचेज कॉस्ट, कैरेज इनवर्ड्स और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्रेट चार्जेस, लेबर हैंडलिंग चार्जेस, इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह अगर कहीं बाहर से मंगवाया है तो, ठीक है, सो ऑन सो फोर्थ। तो ये सारा खर्चा यहाँ पर आएगा। अच्छा, अब इस सेक्शन को हम बनाते ऐसे हैं कि सबसे पहले हम ओपनिंग इन्वेंट्री मेंशन करेंगे। सो ओपनिंग इन्वेंट्री हमें क्वेश्चन में गिवन थी एज 7940। सो ये हमने छाप के यहाँ ट्रायल बैलेंस से डायरेक्टली लिख ली 7940। फिर हम देखेंगे कि हमने क्या क्या गुड्स बाय करी हैं और कितने की बाय करी हैं, तो फिर हमारी आ जाएंगी परचेज कॉस्ट।
कि हमने साल के दौरान क्या क्या खरीदा है और कितने कितने का खरीदा है। तो परचेज प्राइस आ जाएगी हमारी बेटा, सबसे पहले परचेज कॉस्ट आ गई, परचेजेस हमने यहां से उठा ली, ये दी हुई है 61,420। सो परचेजेस में से जिस तरह हमने सेल्स में से रिटर्न इनवर्ड्स माइनस किया था, उस तरह परचेजेस में से हम परचेज रिटर्न्स माइनस करेंगे 1356, ये बात याद रखिएगा। और अगर कैरेज इनवर्ड्स वगैरह होगा, ट्रांसपोर्ट कैरेज इनवर्ड्स, तो वो ऐड हो जाएगा, ठीक है, अगर कैरेज इनवर्ड्स क्वेश्चन में हुआ तो। ऑलराइट, सो 61420 माइनस 1356, सो 61420 माइनस 1356। कैरेज इनवर्ड्स नहीं है, कैरेज इनवर्ड्स क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑन परचेजेस, यहां मैं लिख देता हूं, कैरेज इनवर्ड्स क्या होती है, दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर्ड ऑन परचेजेस। तो जो आपने सामान खरीदा है उसको अपने प्रेमिसेस तक लाने का खर्चा, तो सेलेबल कंडीशन तक का सारा खर्चा कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाता है, राइट। तो जब तक ज़ाहिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर नहीं करोगे तो तब तक आपके पास सेलेबल कंडीशन में नहीं आ सकता। तो कैरेज इनवर्ड्स भी यहीं पर ही ऐड होगा, बट इस सवाल में था नहीं कैरेज इनवर्ड्स, तो हमने उसको जाने दिया, ठीक है। ओके, सो परचेजेस में से परचेज रिटर्न्स या रिटर्न आउटवर्ड्स माइनस हो गया, तो 61,420 की हमने गुड्स बाय करी थी, सामान हमने जो वापस कर दिया सप्लायर को, फॉल्टी था या वॉट एवर रीजन, उसकी कॉस्ट थी 1356। सो नेट टू नेट हमने 60,064 का सामान परचेज किया, तो इसको हमने नेक्स्ट कॉलम में दिखा दिया। तो दीज आर नोन एज नेट परचेजेस। अब बेटा देखिएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री में सामान पड़ा हुआ है 7940 का, एंड वी हैव बॉट गुड्स कॉस्टिंग 60,064। टोटल मिला के हमारे पास सामान कितना हो गया इन्वेंट्री का और परचेजेस का मिला के, इसको हम ऐड कर लेंगे। सो ये हो जाएगा $68,004, या इसको हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, यानी कि हमारे पास सामान जो बिकने के लिए पड़ा हुआ था तैयार, वो कितना था, $68,004 का। कैसे, ओपनिंग इन्वेंट्री में 7940 का सामान था, हमने बाई किया फर्दर 60,064 का, तो टोटल हमारे पास सामान जो अवेलेबल था बिकने के लिए वो था $68,004 का, ठीक है बेटा। फिर इसमें से हम क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कर देंगे, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें नीचे दी हुई होती है इधर, ये दी हुई है 6805, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने माइनस कर दी। अच्छा, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस क्यों करी, बिकॉज $68,004 का सामान अवेलेबल था बिकने के लिए, उसमें से कितना सामान नहीं बिका, दैट इज क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होती है बेटा, द गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड एट द ईयर एंड। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में इसमें डिटेल में हमने बात करी थी, तो ये सामान हमारे पास से बिका ही नहीं है, ये तो हमारे पास ही पड़ा हुआ है। तो $68,004 का सामान तैयार था, अवेलेबल फॉर सेल था, इसमें से 6,805 का नहीं बिका, तो कितने का सामान बिका, माइनस कर दिया 61,199। तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब क्या है, जो गुड्स हमने सेल करी हैं उसकी कॉस्ट कितनी थी, तो जो गुड्स हमने सेल करी हैं उसकी कॉस्ट थी $61,199, ठीक है बेटा। अच्छा, कितने की बेची हमने, 123,759 की बेची, कॉस्ट प्राइस क्या थी इन गुड्स की, 61,199, तो कितना प्रॉफिट हो गया हमें, 62,560 का प्रॉफिट हो गया, माइनस हो गया। तो इसको कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में अभी हमने बाकी एक्सपेंसेस नहीं दिए, अभी हमने सिर्फ गुड्स से रिलेटेड, परचेज से रिलेटेड एक्सपेंसेस लिए हैं, जो खरीदने से लेकर गुड्स को सेलेबल कंडीशन तक लाने के लिए जरूरी थे। तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट तक का अकाउंट है, ये कहलाता है बेटा ट्रेडिंग अकाउंट। सो द अकाउंट टिल हियर इज नोन एज ट्रेडिंग अकाउंट। पूरी इनकम स्टेटमेंट ही बन रही है, लेकिन इस इनकम स्टेटमेंट के अंदर भी जो ग्रॉस प्रॉफिट तक का सेक्शन होता है, इसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि सिर्फ ट्रेडिंग एक्टिविटी शो कर रहा है ना, क्या खरीदा क्या बेचा, कितने का खरीदा कितने का बेचा, दैट इज इट। तो ये हो गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। ऑलराइट जी बेटा, यहां तक बेटा किसी को कोई सवाल है तो मुझसे दोबारा पूछ लें। गुड, यहां तक बेटा, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस
आई एम गिविंग यू 10 more seconds to ask me. I'll repeat again अगर कोई चीज समझ में नहीं आई हो बेटा. 5, 4, 3, 2, 1. All right. गुड हो गया. ठीक है जी. अच्छा, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया. अब जो बाकी सारे जितने भी एक्सपेंसेस है ना जनरल नेचर के, उसमें आपका कोई सेलिंग एक्सपेंस भी हो सकते हैं, बेचने से रिलेटेड, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फॉर सेल्स जिसको हम कैरेज आउटवर्ड्स कहते हैं. इसके अलावा सेल्समैन का कमीशन, डिलीवरी व्हीकल्स का पेट्रोल और डिलीवरी व्हीकल्स के जो ड्राइवर है उनकी वेजेस, डिलीवरी व्हीकल्स का डेप्रिसिएशन. ठीक है. और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि हेड ऑफिस का सारा खर्चा, हेड ऑफिस में जितना भी स्टाफ बैठा है, जो डायरेक्टर्स हैं या जो आपके एम्प्लॉयज हैं, ऑफिस स्टाफ की सैलरीज वगैरह, हेड ऑफिस के अंदर जो भी उसका रेंट वेंट है वो सब, हेड ऑफिस के अंदर जो भी यूटिलिटी बिल्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का, हीटिंग एंड लाइटिंग का, सो ऑन सो फोर्थ. ऑफिस के अंदर जो भी आपके कंप्यूटर इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं उसका डेप्रिसिएशन या लॉस ऑन डिस्पोजल वगैरह. तो सेल्स से रिलेटिंग खर्चा और हेड ऑफिस का खर्चा, और फिर फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट वगैरह, ये सारी चीजें यहां पर आ जाएंगी. या शुरू में समझने के लिए आप ये समझ लो कि परचेजेस से रिलेटिंग चीजें यहां पर आ गई, गुड्स को तैयार करने तक का खर्चा. उसके अलावा जितना भी खर्चा होगा वो नीचे आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आएगा. ठीक है. अच्छा, ये भी हो सकता है बेटा आपके पास कुछ अदर इनकम के आइटम्स हो. हमने तो अभी तक सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम ली है ना, सेल्स. क्या पता सेल्स के अलावा कहीं और से भी इनकम आ रही हो, आपने अपनी कोई जगह रेंट पे दी हुई हो तो वहां से हो सकता है रेंट मिल रहा हो. डिस्काउंट रिसीव्ड इज एन इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स इज एन इनकम, सॉरी, डिक्रीज इन डाउटफुल डेट इज एन इनकम, सो ऑन सो फोर्थ. तो पहले आप अदर इनकम ऐड करेंगे सेल्स के अलावा जो आपकी अदर इनकम है. तो इस क्वेश्चन में सिर्फ डिस्काउंट रिसीव्ड ही था जो हमने शुरू में बात करी थी. कितना है? 62. ठीक है. 62 का डिस्काउंट रिसीव्ड है वो यहाँ पर ऐड हो गया. बट वी हैव लुक्ड एट ऑल द अदर चैप्टर्स. डिक्रीज इन डाउटफुल डेट भी यहाँ जाएगा, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल भी यहाँ जाएगा. ठीक है. और इसके अलावा जनरल से कुछ अदर इनकम, रेंट रिसीव्ड वगैरह, वो भी सब यहीं आएगा. ठीक है. सो ग्रॉस प्रॉफिट में आपकी अदर सोर्स ऑफ इनकम डिस्काउंट रिसीव्ड ही थी, वो ऐड हो गई. तो अभी तक आपका 62,622 प्रॉफिट है. फिर बाकी सारे एक्सपेंसेस आपने यहाँ पे डाल देने हैं. अब एक्सपेंसेस में आपके कौन कौन से एक्सपेंसेस आ रहे हैं ये देखते हैं. सबसे पहले आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे कैरेज आउटवर्ड्स. कितने का है भाई? 3210 का है. सो कैरेज आउटवर्ड्स आ गया आपके पास 3210 का. ठीक है. ये आपने एज इट इज डाल देना है. इसके अलावा डिस्काउंट अलाउड आ रहा है 2480 का, ये भी आपने एज इट इज डाल देना है. ठीक है. तो जिन एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट नहीं है वो एज इट इज आ जाएंगे. तो बस यही दो एक्सपेंसेस थे जिनकी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, बाकी सारे एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट है. सो डिस्काउंट अलाउड 2480 एंड कैरेज आउटवर्ड्स 3210. सो डिस्काउंट अलाउड 2480 एंड कैरेज आउटवर्ड्स 3210. कैरेज आउटवर्ड्स क्या है? कैरेज इनवर्ड्स था ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑन परचेजेस. तो कैरेज आउटवर्ड्स क्या होगा? transportation cost on sales, selling expense in other words. So this is transportation cost on sales. ठीक है. स्क्रीनशॉट अपडेट कर लें अपना. 5, 4, 3, 2, 1. ठीक है बेटा. तो ये दो एक्सपेंसेस तो हमने रिकॉर्ड कर लिए. इसके बाद के आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन सब में एडजस्टमेंट्स हैं. तो मैं एडजस्टमेंट्स का पहले आपको लॉन्ग प्रोसीजर बताऊंगा, फिर शॉर्ट प्रोसीजर ही बता दूंगा, ताकि आपके पिछले चैप्टर में जो हमने पढ़ा है उससे भी चीजें लिंक हो जाएं. तो उसके बाद हमारे पास एक्सपेंस आ रहा है रेंट एंड इंश्योरेंस का. राइट. अब रेंट एंड इंश्योरेंस के अंदर हम देखते हैं कि नीचे हमें यहाँ पर एडजस्टमेंट नंबर सी को भी देखना है. तो एडजस्टमेंट नंबर सी पे जब आप आए तो आपको दिया हुआ है रेंट प्रीपेड कितना है. अच्छा बेटा, एक बात याद रखिए, ट्रायल बैलेंस में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं ना, ये होते हैं पेड एक्सपेंसेस. रिमेंबर आपने जब ट्रायल बैलेंस शुरू में बनाया था, मैंने आपको काफी सारी एक्सरसाइजेस के ट्रायल बैलेंस बनवाए थे. तो हमने सिंपल टी अकाउंट बनाया हुआ एक्सपेंस का. राइट. और एक्सपेंस में एक ही एंट्री हुई हुई है, एक्सपेंस डेबिट, कैश और बैंक क्रेडिट, दैट इज इट.
और इसके बाद आप उसको बैलेंस CDBD कर देते हैं। तो ट्रायल बैलेंस में जो भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो पेड एक्सपेंसेस होते हैं, ये बात याद रखिएगा। यही बैलेंस उठा के आपने ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड कर लिया। सो रेंट एंड इंश्योरेंस पेड कितना है 8870 और प्रीपेड कितना है 600। तो अगर आपको पाप वाला अकाउंट याद हो चैप्टर 28 जो हमने स्टडी किया था, ठीक है, तो पाप वाला अकाउंट चैप्टर 28 में हमने स्टडी किया था। रेंट एंड इंश्योरेंस का अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले पेड अमाउंट, एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट बाय 8870। सो एक्सपेंस डेबिट एंड बैंक क्रेडिट बाय 8870 ये आ गया। अब प्रीपेड, क्लोजिंग प्रीपेड क्रेडिट साइड पे जाता है, रिमेंबर। तो आपको प्रीपेड दिया हुआ है एट द एंड ऑफ द ईयर 600 का, तो ये प्रीपेड आपने रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। तो आपके पास IS का फिगर आ रहा था, ये हमने चैप्टर 28 में सीखा था, राइट। बैलेंसिंग फिगर आ रहा था। सो 8870 माइनस 600 विल बी 8270। अच्छा, अब ये तो हमने चैप्टर 28 में सीखा था और इस तरह भी बनाओगे तब भी ठीक है, लेकिन बेटा पेपर में इतना टाइम नहीं होगा। जब तक ये वो मांग नहीं रहा आपसे टी अकाउंट, तो आप टी अकाउंट बनाओ नहीं, डायरेक्ट करना सीखो। डायरेक्ट कैसे करेंगे, अब हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, राइट। पे हमने कितना किया है 8870। अब प्रीपेड हमें दिया हुआ है 600। प्रीपेड क्या होता है, एक्सपेंस होता है नेक्स्ट ईयर का, लेकिन पे हो चुका होता है इस साल। तो इस 8870 के अंदर 600 नेक्स्ट ईयर का पे हुआ है, तो वो तो नेक्स्ट ईयर का जी बेटा, सॉरी, दोबारा सर हमारा दोबारा बोले। करंट एसेट करंट जी एसेट जी, नहीं हो जाएगा? सॉरी, दोबारा आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, दोबारा बोले। सर करंट एसेट नहीं हो जाएगा जो हमने मतलब अभी यूटिलाइज तो नहीं किया ना उसकी सर्विसेज हाँ, जो भी है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, करंट एसेट में भी जाएगा। अभी जब हम SOFP बनाएंगे तो वहां पे भी जाएगा, ठीक है। ठीक है बेटा। ओके सर। तो 8870 बेटा रेंट एंड इंश्योरेंस हमने पे किया था। उसने बता दिया कि भाई प्रीपेड है 600, यानी कि इस 8870 में से 600 लास्ट ईयर का जो सॉरी नेक्स्ट ईयर का पहले से पे हुआ है। तो इस ईयर का कितना बनेगा, हम क्या करेंगे 8870 में से 600 माइनस करेंगे, क्योंकि 600 करंट ईयर का एक्सपेंस नहीं है। रिमेंबर मैचिंग कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं पहले। क्या बताता है मैचिंग कॉन्सेप्ट, कि जो एक्सपेंस करंट ईयर का होगा वही करंट ईयर में रिकॉर्ड होगा। इनकम भी जो करंट ईयर की होगी वो करंट ईयर की रिकॉर्ड होगी। कैश पेमेंट्स और कैश रिसीट्स नहीं देख रहे हैं हम ये देख रहे हैं इस साल की इनकम क्या है और इस साल का एक्सपेंस क्या है। तो इनकम भी करंट ईयर की लेके जाएंगे इनकम स्टेटमेंट में, एक्सपेंस भी करंट ईयर का लेके जाएंगे। तो फिर आपके पास प्रॉफिट भी करंट ईयर का आ जाएगा, जब इनकम और एक्सपेंसेस आपस में मैच हो जाएंगी तो। ठीक है बेटा। तो क्योंकि ये 600 नेक्स्ट ईयर का था, इस साल का नहीं था, तो हमने हटा दिया। तो डायरेक्टली 8870 में से अगर हम 600 माइनस करें तो एडजस्टेड फिगर आ गई हमारे पास 8270। तो ये काम आप डायरेक्ट करना भी सीखें, ठीक है। सो ऊपर हमने देखो रेंट एंड इंश्योरेंस के अंदर ये ब्रैकेट में दिखा दिया 8870 माइनस 600, तो 8270 डायरेक्ट जवाब आ गया। यहां भी हमने यही किया इस अकाउंट में, आप देखो तो 8870 में से हमने 600 माइनस किया है, तो हमारे पास 8270 आया है। लेकिन अब टी अकाउंट की बजाय अब हम डायरेक्ट करना सीखेंगे, ताकि फटाफट हमारे पास आंसर आ जाए। जी बेटा, अगर नहीं समझ में आया हो तो दोबारा पूछें, आई विल एक्सप्लेन अगेन, नो इश्यूज एट ऑल। यू हैव 10 सेकेंड्स बेटा। 5 4 3 2 1। ऑल राइट, तो रेंट एंड इंश्योरेंस हो गया। अगला एक्सपेंस क्या था वो देखते हैं हम। डाउटफुल डेट है हमारा, ठीक है। डाउटफुल डेट वगैरह को हम बाद में देखते हैं, पहले जरा जनरल एक्सपेंसेस को कवर कर ले हम। वेजेस एंड सैलरीज है हमारे पास। सो वेजेस एंड सैलरीज, वंस अगेन आई हैव टोल्ड यू कि ट्रायल बैलेंस में हमेशा पेड फिगर होती है। तो पेड फिगर कितनी है 39,200, और वेजेस एंड सैलरीज अक्रूड है 3,500। वंस अगेन पहले जरा पुरानी टर्मिनोलॉजी, पहले पुराने तरीके से देखेंगे टी अकाउंट बनाकर, और फिर शॉर्ट करना सिखाऊंगा। तो बेटा पे कर दिया 39,200, सो एक्सपेंस डेबिट एंड बैंक क्रेडिट बाय 39,200। सो पहले वेजेस एंड सैलरीज देख लेते हैं। सो एक्सपेंस डेबिट एंड बैंक क्रेडिट बाय 39,200, ये हमने पे कर दिया, राइट। और अक्रूड, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अक्रूड गोज ऑन द डेबिट साइड, लायबिलिटी है ना। सो लायबिलिटी का CD डेबिट पर और BD क्रेडिट पर होता है, वो वही पाप वाला अकाउंट सेम। सो 3500 का हमारे पास अक्रूड अमाउंट था। सो 3500 हमने अक्रूड यहाँ लिया,
दोनों को ऐड किया, IS की बैलेंसिंग फिगर आ गई 42,700। तो ये बेटा हमने सीखा था बिल्कुल चैप्टर 28 में प्रीपेमेंट्स अक्रूवल्स में पाप वाला अकाउंट, बट लाइक आई हैव टोल्ड यू डायरेक्टली करना सीखेंगे। तो डायरेक्टली ऐड कर देंगे हम, सही है। वेजेस एंड सैलरीज के अंदर ऐड क्यों करेंगे बेटा, देखो 39,200 हमने पे कर दिया है, और अक्रूड एक्सपेंस क्या होता है, वो एक्सपेंस जो अभी तक पे नहीं हुआ। तो ये भी इसी साल का एक्सपेंस है ना, पे नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैचिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो टोटल करंट ईयर का एक्सपेंस क्या हो गया, पेड है 39,200, अनपेड है 3,500। तो टोटल एक्सपेंस दोनों को ऐड करके लेके जाएंगे, तो 42,700 आंसर आ जाएगा हमारा डायरेक्टली। और यहाँ भी हमने बेटा यही किया था, देखो टी अकाउंट में दोनों को ऐड करके लेकर गए 39,200 प्लस 3,500, लेकिन यही काम डायरेक्टली करना है, ठीक है। तो अब एक बात हमें समझ में आ गई कि प्रीपेड होगा तो माइनस करके लेके जाएंगे बिकॉज वो करंट ईयर का एक्सपेंस नहीं है, और अक्रूड होगा तो प्लस करेंगे क्योंकि वो पेमेंट में शामिल नहीं है लेकिन है करंट ईयर का एक्सपेंस। तो याद रखिएगा एक्सपेंसेस के अंदर प्रीपेड हमेशा माइनस होगा और अक्रूड हमेशा प्लस होगा, ठीक है बेटा। अच्छा, जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस में देखिए 319 का आपको दिया हुआ है, वंस अगेन ये पेड अमाउंट है। और जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस ओइंग, ओइंग मतलब अक्रूड, तो अक्रूड ऐड हो जाएगा 319 प्लस 16। सो 319 प्लस 16 ऐड हो गया तो 335 आंसर आ गया, दैट इज इट। तो डायरेक्ट करना सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी तक इसमें मैंने डाउटफुल डेट वाली कहानी अभी तक नहीं करी है सॉल्व। अब डाउटफुल डेट पे आ जाते हैं, ऊपर हमने छोड़ दिया था वो ये पार्ट डी, डाउटफुल डेट। सो याद रहे कि ट्रायल बैलेंस में जो भी डाउटफुल डेट का या डेप्रिसिएशन का बैलेंस दिया होगा ना बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग बैलेंस ही होगा। सो ये ओपनिंग बैलेंस होगा क्योंकि अभी तक इसमें करंट ईयर की एडजस्टमेंट नहीं हुई। देखो बेटा, डाउटफुल डेट की डबल एंट्री क्या सिखाई थी मैंने आपको, एनीवन? अगर इंक्रीज इन प्रोविजन होता है तो डबल एंट्री क्या होती है, एनीवन ओवर द माइक, जल्दी बेटा। इनकम स्टेटमेंट डेबिट। शाबाश, इनकम स्टेटमेंट डेबिट एंड प्रोविजन क्रेडिट, वेरी गुड, ठीक है ना। तो जो करंट ईयर का जो डाउटफुल डेट का जो इंक्रीज है वो इनकम स्टेटमेंट डेबिट होता है और प्रोविजन क्रेडिट होता है। तो ट्रायल बैलेंस के बाद बढ़ रही है ना इनकम स्टेटमेंट, तो ये वाली एंट्री हुई भी नहीं होगी, तो इसलिए आपका बैलेंस ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ होगा, ये एडजस्टेड बैलेंस नहीं है, ठीक है ना। एडजस्टमेंट्स अभी हम बाद में करते हैं ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद। तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ था कितना, 630। अब जिस तरह हमने डाउटफुल डेट के उसमें सीखा है वो देख लेते हैं पहले उस तरीके से। तो 630 हमारा ओपनिंग बैलेंस है, ऑल प्रोविजंस हैव क्रेडिट बैलेंसेस बिकॉज दे आर कॉन्ट्रा एसेट्स, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो अब इंक्रीज इन प्रोविजन है, कितने का है, इंक्रीज हो रहा है बाय 110। सो इनकम स्टेटमेंट डेबिट एंड प्रोविजन क्रेडिट बाय 110, इंक्रीज वाला अमाउंट इनकम स्टेटमेंट डेबिट एंड प्रोविजन क्रेडिट। तो क्लोजिंग बैलेंस आ गया 740, और यही इसने क्लोजिंग बैलेंस यहाँ भी दिया हुआ है, तो इंक्रीज होकर ये 740 पर आ गया। ये नहीं भी देता तो हम खुद ही निकाल लिया हमने। तो ये तो हमने डाउटफुल डेट वाले चैप्टर में सीखा था, ठीक है। लेकिन वंस अगेन अब हमें खुद से करने की आदत डालनी है, जल्दी बगैर टी अकाउंट के करने की आदत डालनी है। तो आपको पता है कि इंक्रीज जो है वो एक्सपेंसेस में जाता है, उसी चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। सो इंक्रीज इन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट 110 यहाँ पर हमने रिकॉर्ड कर लिया, और 740 का जो बैलेंस है वो बैलेंस शीट में चला जाएगा, एसओएफपी में चला जाएगा, ठीक है बच्चों। एनी क्वेश्चंस बेटा, किसी को डाउटफुल डेट अगर दोबारा पूछना है, आस्क मी अगेन, आई विल एक्सप्लेन अगेन बेटा। आपसे एक्सप्लेन करेंगे। बेटा नाम आपका? मोहम्मद तकी सर। उमर तकी। उमर बेटा, रिमेंबर द डाउटफुल डेट, हम लोग क्रेडिट बैलेंस किस साइड पे लेते हैं डाउटफुल डेट का, ओपनिंग बैलेंस? उमर मेरे साथ माइक पे रहे। डाउटफुल डेट पे सर क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे। तो ट्रायल बैलेंस में ये ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ होगा क्योंकि करंट ईयर की तो एंट्री अभी हुई भी नहीं है, इनकम स्टेटमेंट के साथ होगी ना वो एंट्री। तो ओपनिंग बैलेंस है 630, तो ये 630 आ गया यहाँ पे, ठीक हो गया, सही। सही है। अब उसने कहा है इंक्रीज हो रहा है प्रोविजन, कितने से इंक्रीज हो रहा है, 110 से। तो इंक्रीज की एंट्री कर दी, इनकम स्टेटमेंट डेबिट एंड प्रोविजन क्रेडिट बाय 110। सही, ओके सर। तो आंसर क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 740, उसने दिया हुआ है लेकिन नहीं भी देता तो हम खुद से भी निकाल लेते। तो ये तो हो गई टी अकाउंट वाली अप्रोच जो हमने डाउटफुल डेट के चैप्टर में सीखी है, यहाँ तक ठीक है बेटा उमर? यस सर। ठीक हो गया। अब इसको डायरेक्टली करेंगे तो आपको पता है ना इंक्रीज यहाँ जाता है, तो इंक्रीज का अमाउंट उसने दिया हुआ है,
वो डायरेक्ट इनकम स्टेटमेंट में ले जाएंगे हम इंक्रीज इन डाउटफुल डेट 110 का। ठीक है बेटा ओके सर, उमर, थैंक यू। यू आर वेलकम। अच्छा डेप्रिसिएशन में अगर आपको याद हो तो जो डेप्रिसिएशन की पूरी फिगर होती है वो इनकम स्टेटमेंट में आ जाती है एक्सपेंस के अंदर। सो डेप्रिसिएशन की फिगर हमें डायरेक्ट दी हुई है फिक्सचर एंड फिटिंग एंड वैन की। और याद रहे डेप्रिसिएशन की फिगर्स डायरेक्ट नहीं गिवन होंगी, जिस तरह हमने चैप्टर में पढ़ा था एसएलएम और आरबीएम के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऐसे भी आगे सवाल आएंगे अभी। ठीक है बेटा। सो डेप्रिसिएशन हमने 190 और 1400 रिकॉर्ड कर लिया, 190 और 1400, क्योंकि यहाँ तो इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता ना। ठीक है। और अगर आपको डेप्रिसिएशन का अकाउंट देखना हो तो ओपनिंग बैलेंस ट्रायल बैलेंस में कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो ना वैन का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है ना फिक्सचर एंड फिटिंग का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। वैन का डेप्रिसिएशन 1400 है तो वो आईएस से डबल एंट्री हो गई, आईएस डेबिट और पीएफडी अकाउंट क्रेडिट। ठीक है। और फिक्सचर एंड फिटिंग का उसने डेप्रिसिएशन 190 दिया हुआ है तो वंस अगेन आईएस डेबिट एंड प्रोविजन क्रेडिट बाय 190। तो जो आपकी इस साल की फिगर है यही आपकी सेम फिगर बैलेंस शीट में चली जाएगी, बिकॉज देयर इज नो ओपनिंग बैलेंस। जहां ओपनिंग बैलेंस ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा तो वो ऐड होके चली जाएगी। ठीक है, बिल्कुल जिस तरह हमने डेप्रिसिएशन के चैप्टर में पढ़ा है। तो ये 1400 और 190 का डेप्रिसिएशन आ गया। अब हमारे पास ये एक्सपेंसेस की लिस्ट कंप्लीट हो गई, ये सारे एक्सपेंसेस हमने ऐड किए तो आंसर आ गया हमारे पास 58,695 का। ये टोटल हमारे एक्सपेंसेस हैं। ऑलरेडी हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट एट अदर इनकम करके आंसर आया हुआ था 62,622 का। उसमें से हमने अपने बाकी सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दिए 58,695 के, तो हमारे पास प्रॉफिट आ गया 3927 का। ठीक है बेटा। सो एनी क्वेश्चंस बेटा बिफोर आई मूव ऑन? Any questions before I move on? All good. 5, 4, 3, 2, 1. अच्छा भाई स्क्रीनशॉट्स ले लें। पहले तो जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Then again. इसका आई होप आपने पहले से स्क्रीनशॉट लिया हुआ हो जी। 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1 जी। 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. All right. ठीक है भाई। और इसके बाद ये नीचे वर्किंग्स की भी स्क्रीनशॉट ले लें। 5 seconds बेटा। 5, 4, 3, 2, 1. जी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5, 4, 3, 2, 1. ठीक है बेटा। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल लुक एट द एसओएफपी एंड वी विल आल्सो लुक एट फर्दर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस कि किस किस तरह से वो आपकी जिंदगी इसमें मुश्किल बना सकता है इस किस्म के सवालों में। ठीक है बेटा। अच्छा नाउ बिफोर वी मूव ऑन जरा जल्दी से मुझे चैट के ऊपर डन या एक ओके का मैसेज लिख दें सो दैट आई नो कि क्लियर हो गया सबको। जल्दी से बेटा, क्विकली एवरीवन, जल्दी से क्विकली 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 एक डन और ओके का मैसेज लिख दें बेटा। ऑल राइट, गुड हो गया। ठीक है, ठीक है बेटा। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको फर्दर स्टडी करेंगे। सो इफ यू डू नॉट हैव एनी क्वेरीज यू मे लीव।
ऑलराइट बेटा, टेक केयर। ओके बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।